Good morning students and again welcome to our economics class. In this chapter Indian economy from 1950 to 1990 we study about what are the conditions of our planning, first 5-year plan to 12th 5-year plan, their objective, their bad and good impacts, it means success and failures. Then we study what are the development of agriculture, green revolutions. We also study industrial development in the country and then we study about our foreign trade. Today we study last topic of this chapter. It is the inward looking policy, and in inward looking policy we mainly study about the import substitution policy. We study what is the meaning of inward looking and how government adopt the policy of import substitution in it. What is its meaning? Then what are the meaning of words which generally used in it? It's a tariffs and quotas. How government adopt import substitution policy and export. We can say that export promotion policy. Then we study what are the good and bad impacts of this import substitution policy. It's a very important topic from your exam point of view. But first of all, we study what is the meaning of inward looking policy. Inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry by import restrictions and import duties in the area of international trade. हमने जब बात की इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी तो हमारी कंट्री की तरफ हम देखें हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सो इसके लिए हमने क्या करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी और साथ ही साथ हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करी. जो हमारे इंपोर्ट्स होते थे उसको रेस्ट्रिक्ट करा हमने बाय द पॉलिसी ऑफ टैरिफ्स, बाय द पॉलिसी ऑफ कोटास. पहले बात करते हैं टैरिफ और कोटास क्या होते हैं. टैरिफ क्या होता है, जब इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं उन पर जो गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है, टैक्सेस लगाती है, दीज आर द टैरिफ्स. A tariff is a duty on the import commodity. It directly increases the price of imposed commodity, thereby offering protection to the domestic product from foreign competitions. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है. टैक्स लगाने पर क्या होगा, गुड्स महंगा हो जाएगा. जैसे मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइस है 100 रुपीज, अब गवर्नमेंट उस पर 50% टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो हमारे लिए कितने का हो गया, वो 100 प्लस 50 150 रुपीज. तो जब कस्टमर तक आता है तो काफी महंगा हो जाता है, जिससे उसका डिमांड लेवल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट्स को कम करने उस पर टैरिफ टैक्सेस लगा देती है. सिमिलर वे के अंदर कोटास, QUOTA, अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्स द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. thus the quota is fixed keeping in view the needs of the country. कंट्री की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोटास को फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा बाहर से आप इंपोर्ट्स नहीं करोगे, मतलब एक तरह से इंपोर्ट की क्वांटिटी को फिक्स कर देना. सो गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास अंडर इट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. What are the main points of this policy? We study very carefully. What are import substitution implies domestic production on those goods which the country has been importing from rest of the world. It is a policy to save foreign exchange by restricting the volume of import. जो goods हम बाहर से import कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में किया जाए, कि हम बाहर से इंपोर्ट से उस पर डिपेंड नहीं हो, जिससे कि हमारा जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज वो बचेगा और उससे अदर जो नेसेसिटीज आइटम है हम उनका इंपोर्ट कर पाएंगे. फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट इंपोर्ट्स. एक चीज और बता रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बचेगा उसके अंदर डेवलपमेंटल जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट से उसको इजी गोइंग इंपोर्ट्स कर पाएंगे. बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग trade policy, the government preferred to economize the use of foreign exchange rather than maximize the generation of foreign exchange. It means यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बाहर से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी, तो अब जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे लिए बचेगा, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, कम होता चला जाएगा. जैसे हमने देखा अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह जुलाई 1991 आते आते हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड लगभग खत्म सा हो गया, सिर्फ $2 बिलियन बचा था, विच आर जस्ट ओनली फॉर अवर 2 वीक इंपोर्ट्स.
Also, the government wanted to protect the domestic industry from international competition. अगर हम import substitution policy adopt करते हैं तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करें, उसका बचाव करें, ताकि बाहर से हमारे को कंपटीशन नहीं मिलेगा और वीकेंड रिलायंस ऑन आवर ओन गुड्स. What is the inward looking policy? India pursued a trade policy to protect its domestic industry from foreign competition, which is known as inward looking policy. It had both good as well as some bad effects. इसके कुछ अच्छे effects भी है हमारे लिए, इसके हमारे लिए कुछ bad impacts भी है. We study all these. Following are the good and bad impacts of our inward looking policy or import substitution policies given. I repeat it. थोड़ा सा मैं इसको वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगा. Inward looking policy का मतलब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट हमारे फॉरेन ट्रेड में अंदर हमारे इंपोर्ट्स को कम करना चाहती है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो अदर कंट्रीज पर कम हो, हमारी सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ है, मींस हमारे रिसोर्सेज के बिहाफ पर हमारी ग्रोथ हो, इंपोर्ट्स को हम कम करें और जो इंडियन इंडस्ट्री गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो फॉरेन कंपटीशन से बची रहेगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट ने दो चीजें टैरिफ और कोटास, जो बाहर से गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट उस पर ज्यादा क्वांटिटी में टैरिफ्स लगाती है, टैक्सेस लगाती है, जिससे कि कंज्यूमर तक पहुंचते वो महंगे हो जाते हैं. और जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे लिए नेसेसरी नहीं है तो गवर्नमेंट उसके एक मैक्सिमम लिमिट मतलब उसका कोटा डिसाइड कर देती है कि इससे ज्यादा गुड्स हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकते. Now we see what are the bad impact and what are the negative impact of this import substitution policy. ये जो गवर्नमेंट की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अच्छे इंपैक्ट हमारे लिए क्या निकल के आए और हमारे लिए बुरे इंपैक्ट्स हैं, मतलब व्हाट आर इट्स सक्सेस एंड व्हाट आर इट्स फेलियर्स. हम पहले बात करते हैं गुड इंपैक्ट. इट मींस सक्सेस, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. एक तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की जीडीपी में, उसके अंदर चेंजेस आया. जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हुआ और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ बाय दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. नाउ वी रीड इट. Despite green revolution, the percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. ये डेटा सबको याद रखना पड़ेगा कि हमारी जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% था, 12% 1951 में, वो 1991 में इंक्रीज होकर कितना हो गया 25%. और एक चीज और है कि इसी ड्यूरेशन में 1966-67 में हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ा, पर उसके बावजूद इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ करी और इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 12% से बढ़कर 25% हो गया. सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. यस, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वो डाइवर्सिफाइड हुआ. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चरल गुड्स का. इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, मशीनरी के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंड थे, मेनली ऑन इंग्लैंड एट दैट टाइम. पर धीरे-धीरे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ. आज इंडिया बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स का न सिर्फ प्रोडक्शन करता है बल्कि उनको एक्सपोर्ट कर रहा है. हम डिफेंस के एरिया के अंदर इवन मिसाइल है, फाइटर प्लेन्स तक हम तेजस हम बना रहे हैं, न सिर्फ उसको बना रहे बल्कि उसके एक्सपोर्ट प्लानिंग भी कर रहे हैं. सिमिलर वे के अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर इंडिया रैपिडली आगे बढ़ रहा है. डिफरेंट कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं. सो ऑल दिस शो द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये डाइवर्सिफाइड हुआ और रैपिडली इसमें ग्रोथ भी करी. मॉडर्न इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट. थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, industrial growth started spreading across engineering goods and a wide range of consumer goods also. Owing to the inward-looking trade policy, there was a noticeable growth of the then sunrise industry. Sunrise industry मतलब इसको याद रखना, इंडस्ट्री कौन सी, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, उसको वर्ड दिया जाता है सनराइज इंडस्ट्री. और इंडिया एक धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का धीरे-धीरे इंडिया में हब बनता जा रहा है. जैसे इंडिया की बात करें हम तो मीडियम रेंज स्मार्टफोन से कार मैन्युफैक्चरिंग का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्मॉल कार्स है, इंडिया इसका हब बनता जा रहा है धीरे-धीरे. पर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है. सो ऑल दिस शो द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. हमारी इकोनॉमी के अंदर
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रैपिडली बढ़ी। आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में है कि जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। एक टाइम पर हमारी कंट्री में एफडीआई बिल्कुल नाममात्र का था, नेग्लिजिबल था, बहुत कम था। गवर्नमेंट इसके रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, पर जैसे गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया, हमने हमारे एलपीसी पॉलिसी को अडॉप्ट करा, तो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करा। आज इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एफडीआई आप लोग इन परसेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट कर रही है फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जस्ट लाइक सैमसंग। Protection of small scale industry opened new opportunity of investment for those who did not have much capital. It also implied the use of latent resources in the country which otherwise have remained idle. मतलब दो चीज बता रहा है कि जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज आइडल पड़े हुए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, वो रैपिडली डेवलप हुई बाय दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। हमने बाहर से इंपोर्ट करना बंद करा, तो हमारे यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्होंने उसका धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। So all these are the merits, or you can say the good impact of import substitution policy. I repeat the points. What are high rate of industrial growth and structural transformation, diversification of industrial growth and opportunities of investments. यहाँ जो बात इन्वेस्टमेंट की गई है mainly डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे से what are its bad impacts? ये बुरे impacts हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसकी failures क्या है? Growth of इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। यस, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे यहाँ पर आया कि हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की मोनोपोलीज डेवलप हो गई। बट ये जो पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था, ये लोगों के रिक्वायरमेंट्स और वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ टाइम पहले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो लोगों के बेसिक टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेट करना पड़ता था 6 मंथ और इवन 1 ईयर। अगर हम कार्स की बात करें, बहुत ज्यादा मॉडल अवेलेबल नहीं थे। कार के नाम पे सिर्फ एम्बेसडर बोल सकते हैं या हम फोर्ड है, 2-3 तरह की कार अवेलेबल थी हमारी कंट्री के अंदर। तो एक चीज क्या बता रहा है हमारे को, जो पब्लिक मोनोपोलीज है उसकी वजह से पब्लिक की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। और सेकंड हम बोल सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी नहीं हो पा रहा था। सेकंड बता रहा है लेक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यस, कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट ने उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया, नो डाउट गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा था, पर इसका नुकसान क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री में स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट डेवलप नहीं हो पाई, मतलब कंपटीशन की भावना डेवलप नहीं हो पाई। और जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थे, और ये रीजन हो रहा था कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए थे वो इंक्रीज नहीं हो पाए, बिकॉज आवर इंडियन इंडस्ट्री आर फेल्ड टू फेस द वर्ल्ड कंपटीशन। मैं कब की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1990 की। आज तो इंडिया वर्ल्ड क्लास जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहे, 1990 तक। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सिर्फ गवर्नमेंट ने किसकी बात करी, डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, द टोटली इग्नोर द प्राइवेट सेक्टर एज वी स्टेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो एक बहुत बड़ा फेलियर ये भी है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलप हुआ वो पब्लिक की वांट्स को पूरा करने में एक तरह से बोल सकते हो सक्सेसफुल नहीं रहा, और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे लाइसेंस, परमिट, कोटा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब इन सब का इंपैक्ट क्या हुआ कि जो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो धीरे धीरे डेफिसिट होता चला गया। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट इवन हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज्यादा डेफिसिट होता हुआ चला गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेवी इंडस्ट्री डेवलप कर दी और उस पर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाखों हजारों लाखों करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया। पर उसका रिजल्ट क्या आया कि पब्लिक सेक्टर इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री धीरे धीरे लॉस मेकिंग या बोल सकते गवर्नमेंट के लिए बर्डन बन गई। तो कंटिन्यू वे के अंदर लॉस क्रिएट कर रही थी गवर्नमेंट के लिए, उन्हें प्रोडक्शन लेवल डाउन होता हुआ चला गया। तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया कि या तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट्स करें या फिर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज करें। और ये रीजन था कि 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में यू टर्न लिया और जो हमने पॉलिसी थी हमारी लाइसेंस परमिट कोटा राज, गवर्नमेंट उसको चेंज करा एंड गवर्नमेंट अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीसी, वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So by this class we complete our second chapter. It is Indian economy from 1950 to 1990.
मैंने इसको एक सिंगल चैप्टर में लिया, बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको 3 या 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। अगर अदर बुक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, सो वी कंप्लीट आवर 4 चैप्टर्स। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. In short, we select LPC.